Hello student. Today we are learning class 12th account. In account our topic name is partnership, chapter first. Okay. In first chapter we will solve today question number 14. In question number 14 is given us three partner. It's A, B, C. Here is three partner in this question, and their capital are 40,000, 30 and 20,000 rupees. B and C will get salary here 2,000 and 1,500 per annum. Okay, we have to give salary. Interest on capital 5%. We have to calculate here 5% interest on capital. Means all partners will get interest on capital 5%. Out of total profit will be distributed in the ratio of 50, 30 and 20. मीन्स हमें यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से 12,000 रुपए तक के प्रॉफिट को 50, 30 और 20 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, देन बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. जो बाकी बचेगा रिमेनिंग प्रॉफिट जो रहेगा वो हमें बांटना है इक्वली. देन प्रॉफिट, हियर इज गिवन प्रॉफिट 20,100 रुपीज, बट दिस इज विच प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर सैलरी. मीन ये जो प्रॉफिट दिया है 20,100 रुपए का, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के पहले का है और आफ्टर सैलरी देने के बाद का. ये पॉइंट मेन है. यहाँ पर मेन पॉइंट इसलिए है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट के आधार पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही कैलकुलेशन करना है. आफ्टर सैलरी ये जो प्रॉफिट दिया है सैलरी देने के बाद का, यानी कि हम सैलरी नहीं देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन फॉर्म में. ओके, देन ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर ए बी सी तीनों में ड्राइंग किया है 8,000, 7,500 एंड 4,000 रुपीज. ए बी सी करंट अकाउंट बैलेंस. हियर इज गिवन करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ द ऑल पार्टनर्स. A's current account balance is credit balance, here is given 3,000, B's credit balance 500 and C's debit balance. Okay, we have to remember this point. C's debit balance 1,000. Then we have to make profit and loss appropriation account and partners current account. In this question we have to make only two accounts, profit and loss appropriation account and partners current account. Okay, so let's start our solution. First of all, we will make profit and loss appropriation account. In profit and loss appropriation account, we will write first by balance BD. Here is given profit, so we will write in heading by balance BD 20,100 rupees. Okay, and here is not given information about interest on drawing, so we will not write here interest on drawing. And we will come in debit side, and then we have to write to interest on partners capital. Means all partner will get interest on capital 5%. So we have to write all partners name first of all. A's capital is 40,000, B's capital 30,000 and C's capital 20,000. So we have to calculate here 5% interest. Okay, all partner will get 5% interest. So 5% of 40,000, 2,000, and 5% of 30,000, 1,500, and 5% of 20,000 will come 1,000, and total will be 4,500. Then we have to write we will not write here salary. Why we will not write here salary? Because which profit is this? कौन सा प्रॉफिट है? आफ्टर पेइंग सैलरी and before interest on capital. So we have written here interest on capital, but we will not write here to salary to all partners. So directly we have to distribute profit. Means we will find out here profit. Means 20,100 minus 4,500. So here will come
15,600 means profit is 15,600. So ये जो 15,600 रुपए प्रॉफिट है, इसमें से 12,000 रुपए तक के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना हमें 40, 30 और 20 के रेशियो में. सो वी विल राइट फर्स्ट वन हियर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. क्यों लिखा मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट यहां पर? क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का बोला है. सो यू राइट फर्स्ट ए बी सी. अब ये 15,600 रुपये प्रॉफिट आया, इसमें से दिया है 12,000 रुपये तक के प्रॉफिट को 50, 30 और 20 के रेशियो में बांटना है. 12,000 रुपये लिखेंगे हम. In the ratio 50, 30 means 50 upon 100, 30 upon 100, 20 upon 100. तीनों को जोड़ा और नीचे अपॉन में लिख देंगे 100. मीन्स 100 आया टोटल और ऊपर लिखेंगे 50. मीन्स 50 upon 100, 30 upon 100, 20 upon 100. ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 6,000. 10 से 20 जुड़ गए 3,600. ठीक, 50, 30 और 20 के रेशियो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब ये जो 15,600 रुपए है, इसमें से 12,000 रुपए तक तो तुमने 50, 30 और 20 के रेशियो बांट दिया. बाकी बचा कितना? 3,600 रुपए. 3,600 रुपए को हमें बांटना है इक्वली तीनों पार्टनर्स में. कितना कितना आ जाएगा तीनों में? 1200 + 100 ओके. हियर वी हैव टू राइट 15,600 और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. 1200 मींस 7,200. ए को मिल गया, बी का हो गया 4,800 और सी का प्रॉफिट हो गया 3,600. टोटल हो गया 15,600. ओके. देन वी हैव टू राइट हियर टोटल बोथ साइड. ओके, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक, इसके बाद में हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट. Okay student, now we are making partners current account. In partners current account, first of all we will write by balance BD. Means here is given partners current account balance A and B. Here is given credit balance 3,000 rupees and 500 rupees. And C's debit balance given. So we will write in debit side in C's column balance to balance BD 1,000 rupees. Okay student, is it clear? First of all we will write by balance BD in A and B's amount column only. Why we are not writing in C's column? Because here is given debit balance of C's current account. So we will write in debit side in C's amount column. Okay. And A and B's credit balance, so we have written in credit side. Then we will write by interest on capital. 5% of 40,000, 2,000 and 5% of 30,000, 1,500 and 5% of 20,000, 1,000. Then we will write by salary. Here is getting only two partners salary, B and C. So we will write in B's amount column 2,000
एंड सी 1500। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है बी और सी ही सैलरी प्राप्त करेंगे, तो हमने लिखा है यहाँ पर बी और सी के अमाउंट को। देन वी हैव टू गिव हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए जो प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं तीनों पार्टनर्स, वो लिखना है। तो ए को प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है 7,014 and 7,200 and B is getting 4,800 and C is getting 3,600 according to profit and loss appropriation account। मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने लिखा है किस साइड में, डेबिट साइड में, सारी अमाउंट हम यहाँ लिखना है क्रेडिट साइड में, एक्सेप्ट बैलेंस। ठीक है, वहां पर बैलेंस भी लिखा था हमने, बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा रहा था, यहाँ बैलेंस भी लिखना। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं डेबिट साइड। इन डेबिट साइड वी हैव रिटन डेबिट बैलेंस ऑफ सीज। ओके, देन वी विल राइट हियर टू ड्राइंग। Drawing, it is given in question 8,000 is A withdrawn, 7,500 B withdrawn and 4,000 rupees C withdrawn. Then we have to find out closing capital। किसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल? हम A के अमाउंट के कॉलम का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड वाला टोटल माइनस कर देंगे, जो आएगा उसे लिखेंगे टू बैलेंस CD। इधर टोटल कितना हुआ 7,200 और 5,000 रुपए, 12,200। 7,200 प्लस 9,200 और 3 12,200। 12,200 में से माइनस करेंगे हम 8,000 रुपए को, ये हो जाएगा 4,200। मीन्स इज बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस विल कम 4,200। बी का भी नहीं करेंगे, 4,000, 6,800, 7,800, 800 और 9,800 में से माइनस करना है हमें। सॉरी, मैंने टोटल गलत कर दिया। 6,000, 7,000, 8,800 रुपए। Here will come 1,300 रुपीज। सो बी के अमाउंट का कॉलम क्या है 1,300, मीन्स टोटल डिफरेंस क्या है 1,300। फिर सेम वही करेंगे प्रोसेस हम सी के लिए भी, 3,600, 4,600 और 5,600 माइनस करेंगे 5,000 रुपये, ये विल कम 1,100। ठीक है, 1,100 रुपीज। सो ये है तीनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग कैपिटल, और वापस टोटल कर देंगे तो 12,200 टोटल इस साइड का, 8,800 सेम यही टोटल इधर भी लिखना है हमें। ओके स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें इस अकाउंट, इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना था, जो हमने बना लिया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 18। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन एज अरुण एंड अरोरा और 2 पार्टनर, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। ये 2 पार्टनर हैं यहाँ पर, और दोनों 5 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल 60,000 एंड 80,000। ठीक है, उनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है हमें 60,000 और 80। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वी हैव टू गिव 12%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू गिव
interest on capital 12%, and we have to charge in this question interest on drawing 15%. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 15% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करना है दोनों पार्टीज के ऊपर. प्रॉफिट इज गिवन हियर 12,600 rupees and drawing during the year 2,000 and 4,000 rupees. And we have to make in this question profit and loss appropriation account. Okay, here is not given. We have to remember this point. Here is not given drawing date. मीन्स किस तारीख को इन्होंने आहरण किया हुआ है. अगर डेट नहीं दी रहे ड्राइंग की तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करते हैं वो हाफ चार्ज किया जाता है. मीन्स आधे साल का ही चार्ज किया जाता है. ये रूल है. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे तब पार्टनर्स से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा वह हाफ ईयर का ही रहेगा. ठीक, सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेक ओनली पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो लेट्स सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी हैव टू राइट फर्स्ट फॉर बाय बैलेंस BD 12,600 rupees. Here is given in question. Interest on drawing Arun and Arora 2,000 15% of 2,000 and half ईयर का तो 6/12 लिखेंगे. मीन्स 1/2 भी लिख सकते हैं हम सर. तो ये विल कम 150 रुपीज. जैसे 15% निकालेंगे इसका 2,000 रुपये का तो कितना आएगा 300 रुपये. 300 रुपये का आधा करेंगे तो 150 रुपये. ऐसे भी कर सकते हैं. फिर 15% निकालना 400 रुपये का 4,000 रुपये का तो ये आएगा 600 रुपये. 600 का आधा करेंगे तो 300 रुपये. टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 450 रुपीज. ठीक, अब हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है पार्टनर्स को. सो वी विल राइट हियर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण एंड अरोरा. ठीक, 60,000 रुपीज है अरुण की कैपिटल, अरोरा की है 80,000 रुपीज. तो 12% ऑफ 60,000 7,200 rupees, but 12% of 80,000 9,600 rupees. Total will be 60,800 rupees. अब हमें प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करना है. इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है. हमें क्वेश्चन में दिया है चाहे पार्टनरशिप में लॉस हो तो भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर्स को. हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन कर दिया. अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट और लॉस. तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. पहला क्रेडिट साइड का टोटल होगा 13,050 रुपये. उसमें से सीधी सी बात दिख ही रहा है हमें, इसमें समझ में आ रहा है कि उस साइड में कम आ रहा है. क्रेडिट साइड का टोटल 13,050 रुपये और इधर हमें पे करना है 16,800 रुपये. मतलब इंटरेस्ट देना है 16,800 रुपये और हमारे पास प्रॉफिट है 13,050 प्लस ड्राइंग का भी हमने ऐड कर दिया. टोटल मिलाकर 13,050 रुपये. इधर 16,800 रुपये पे करना है, ज़्यादा देना हमें इंटरेस्ट. तो हमें लॉस हो रहा है 16,800 रुपये का इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग हुआ और 13,050 रुपये प्रॉफिट है हमारे पास. तो लॉस होगा हमारा 3,750. मैंने लिखना है इधर बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,750. अब इस लॉस को ट्रांसफर करना है किस रेशियो में 5:3 में. ठीक, 5:3 5/8 करेंगे इसे और 3,750 को 3/8 करेंगे. तो टोटल हो जाएगा 19,342 रुपये अरुण को मिलेगा और अरुण का लॉस होगा 14,600. ठीक, सो हमें ये 23,44 रुपये लिखना है अरुण की इसमें और 1406 रुपये लिखना है अरुणा. ये दोनों को लॉस हुआ और इसके बाद में हमें टोटल कर देना है. टोटल विल बी 60,800 रुपीज
16,800. Okay students, here is completed our profit and loss application.